नमस्कार दोस्तों. In last lecture, we have studied how to give IUPAC names to alcohols, phenols, and ethers. Let me revise few things. Alcohols are hydroxy derivatives. But see, they are hydroxy derivatives of hydrocarbons. We can replace hydrogen atom of alkane by OH. We can replace hydrogen atom of alkene by OH, and even we can replace hydrogen atom of benzylic carbon to give an alcohol. So alcohols are hydroxy derivatives obtained by replacing hydrogen atom by hydroxyl group. Now what is phenol? Phenol is also hydroxy derivative, but it is a hydroxy derivative of benzene and other aromatic hydrocarbons. And in the case of phenols, OH group is directly linked to aromatic nucleus. So see, what you have to remember, in benzylic alcohols, OH is not directly linked to benzene ring. But in phenol, OH group is directly linked to benzene ring. Then ethers. We have seen that ethers have oxygen atom as a functional group. And as oxygen is bivalent, it is linked to either two similar alkyl groups or different alkyl groups or aryl groups. And that's why we have seen that there are aliphatic ethers and aromatic ethers. In aromatic ethers, both alkyl groups are aromatic, and in case of aliphatic, they are alkyl groups, that is either methyl or ethyl. After that, we have seen that alcohols are named as alkanols in IUPAC naming system. Phenols are named as derivatives of phenols because phenol is an IUPAC accepted name. Ethers are named as alkoxyalkanes. Which group is called alkoxy? RO. RO group is called alkoxy group. So you have to revise all these things. Now today we are going to discuss how to prepare alcohols. Now see here, few points are omitted from our syllabus, and the points which are omitted are marked here by a red rectangle and a red circle. So these points are not need to be studied this year. These are omitted. So from this particular first slide, we are going to study only one reaction, and that is the reduction of aldehydes and ketones. But what is reduction? Reduction means addition of hydrogen atom or removal of oxygen atom. So the reaction in which hydrogen is added or oxygen is removed is reduction. Now to bring about reduction, we need certain reagents called reducing agents. There are large number of reducing agents. Few of them we have studied in 11th standard. The simplest of them is hydrogen gas in presence of catalyst like nickel, platinum or palladium. Other one is LiAlH4, that is lithium aluminium hydride. See, there are certain specific characteristics of reducing agents. We will later discuss them. So this LiAlH4 is a better reducing agent. It has certain advantages. H2Ni is also good one. It has certain other advantages. So depending on
the conditions depending on our requirement, we choose the reagent. Now here, in this particular point D, what they have mentioned, reduction of carbonyl compounds. Now what is carbonyl compound? Not all compounds are carbonyl. To be carbonyl, there is one requirement, and that requirement is presence of C double bond O group, this particular group. C, that is carbon, doubly bonded with oxygen atom. So this particular group is called carbonyl group. And compounds which contain carbonyl group are carbonyl compounds. Aldehydes and ketones, they are carbonyl compounds because both of them contain CO. In case of aldehydes, this CO group is linked to hydrogen, and that's why CHO or COH is the functional group of aldehydes. And in case of ketones, CO group is directly linked to two alkyl or allyl groups, R and here again R. RCOR means ketone. So aldehydes and ketones both are carbonyl compounds. Now see what they have mentioned, that is when we treat aldehydes or ketones with a suitable reducing agent, what we get is an alcohol. Now two things you have to remember here. Aldehydes on reduction give primary alcohols. See, they have mentioned here, if we reduce aldehyde, what we get is primary alcohol. And when we reduce ketone, what we get is secondary alcohol. Now why this is so? Simply because of the functional group. In case of aldehyde, see there is CHO. And when we reduce CHO, it gets converted into CH2OH. It means one molecule of hydrogen is added. See, there is a C double bond O. When we add H2, one H gets linked to oxygen atom to give OH, and second H gets linked to this particular carbon called as carbonyl carbon. It gets converted to CH, and that's why CHO group is converted into CH2OH. And we know that alcohols which contain CH2OH are primary alcohols. So aldehydes on reduction give primary alcohols. Now see, this is ketone RCOR, and when we add hydrogen gas to it, double bond gets reduced, one H gets linked to O and second to C. So C double bond O is converted to CHOH, CHOH. And we know that alcohols which contain CHOH group, they are secondary alcohols. So ketones are reduced to secondary alcohols and aldehydes are reduced to primary alcohols. Now what they can ask us in example? A possible question is, what is the product of reduction of aldehyde? Or they may mention a particular aldehyde, that is acetaldehyde, CH3COH. It will be converted into CH3CH2OH, that is ethyl alcohol. Or they may ask us, what will happen if ketone, particularly acetone, is treated with hydrogen gas in presence of nickel? Now in case of acetone, R group is CH3. Value of R is CH3 in case of acetone. So when we reduce acetone using suitable reducing agent, it gets converted into CH3CHOH single bond CH3, that is propan-2-one. Got it? Okay. The second reaction is by reduction of carboxylic acids. Now what is carboxylic acids? Carboxylic acids contain COOH group. All compounds containing COOH group are carboxylic acids. Now here we require a stronger reducing agent like LiAlH4, that you have to remember. We can reduce aldehyde and ketones by using H2NI.
or even LiAlH4. But in case of carboxylic acid, we need a stronger reducing agent, LiAlH4, because as compared to aldehydes and ketones, carboxylic acids are less susceptible to reduction, and that's why stronger reducing agent is needed. Here, after reduction, COOH group is converted into CH2OH, that is primary alcohol. So again here, carboxylic acids on reduction give primary alcohols. If we reduce acetic acid, in case of acetic acid, value of R is CH3. If R is CH3, then it is acetic acid. Here, if the value of R group is CH3, then CH3COH means acetic acid. So when we reduce it using LiAlH4 and H2 plus, what we will get is CH3 CH2OH, that is ethyl alcohol or ethanol. So the possible question is, how is ethanol prepared from acetic acid? So we have to mention this particular reaction there. See here, few more reactions are given by them. When we treat acid, that is RCOH with ROH, there is a formation of ester, but reaction is reversible. And as reaction is reversible, we prefer dilute acid. Now when ester is formed, it gets reduced by, we can reduce it by using H2Ni, and finally what we will get? Again, primary alcohol. So esters and acids both give प्राइमरी अल्कोहल्स. तो देखिए दोस्तों, हमने अभी क्या पढ़ा कि आपके अल्डिहाइड्स रिडक्शन होने के बाद आपको प्राइमरी अल्कोहल देते हैं प्रोडक्ट्स. कीटोन्स भी रिडक्शन होने के बाद सेकेंडरी अल्कोहल्स देते हैं, और आपके एसिड्स और ईस्टर्स रिडक्शन के बाद आपको देते हैं प्राइमरी अल्कोहल्स. लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ याद रखनी है कि एसिड्स और ईस्टर्स इनको रिड्यूस करने के लिए आपको यूज़ करना है LiAlH4. In case of esters we can use H2Ni, but particularly in case of acids, LiAlH4 is preferred because it is a stronger reducing agent. Now, one more point is mentioned here. See what they have mentioned. The advantage of LiAlH4 over H2Ni is that it does not reduce the isolated olefinic bond, and hence it can reduce unsaturated aldehyde and ketones to a saturated alcohol, unsaturated alcohol. Olefinic bond. Last year we have seen that alkenes, they are also called olefins. तो आपके जो अल्किन्स है उन्हें हम ओलेफिन्स बोलते हैं. तो ओलेफिनिक बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड. तो यदि आपके अल्डिहाइड में डबल बॉन्ड है और आप उसका रिडक्शन करते हो यूजिंग LiAlH4, तो आपका डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होगा और रिटेन होगा. सिर्फ आपके CHO ग्रुप का कन्वर्शन होगा CH2OH में, दैट इज प्राइमरी अल्कोहल में. तो आपको अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड यूज करने के बाद प्रोडक्ट भी अनसैचुरेटेड अल्कोहल मिलेगा. अनसैचुरेटेड अल्कोहल इज अल्कोहल कंटेनिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड. डबल जनरली यदि हम अल्किन का डेरिवेटिव यूज करेंगे तो ये LiAlH4 की विशेषता आपको याद रखनी है कि इट डज नॉट रिड्यूस ओलेफिनिक बॉन्ड, दैट इज डबल बॉन्ड इफ इट इज प्रेजेंट इन अल्डिहाइड एंड कीटोन. तो यदि कीटोन और अल्डिहाइड में डबल बॉन्ड है और आप उससे LiAlH4 यूज करके रिड्यूस कर रहे हो तो डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होगा. So they can ask this question for 1 mark. What is the advantage of LiAlH4 over H2Ni? तो आपको ये बात वहाँ पे मेंशन करनी होगी कि it does not reduce isolated olefinic bond, that is double bond. Hence it can reduce unsaturated aldehyde or ketones to unsaturated alcohols. तो unsaturation retain होता है aldehyde और कीटोन में जब आप LiAlH4 को यूज करते हो. Let us move to the next point. By
addition of Grignard's reagent. Now what is Grignard's reagent? Grignard reagent is RMgX. Alkyl magnesium halide is called Grignard's reagent. And we prepare it by treating alkyl halide with magnesium metal in presence of dry ether. We have seen that RMgX is highly reactive and it even reacts with moisture, and that's why it is prepared and stored in dry ether. ड्राई ईथर का मतलब क्या है? ईथर फ्री फ्रॉम ट्रेसेस ऑफ वाटर एंड अल्कोहल. आपका ईथर कब ड्राई होगा? जब इसमें वाटर का कंटेंट नहीं होगा और अल्कोहल का कंटेंट भी नहीं होगा. सो ईथर फ्री फ्रॉम मॉइस्चर एंड अल्कोहल, ट्रेसेस ऑफ अल्कोहल इज ड्राई ईथर, एंड वी प्रिपेयर्ड and stored RMgX in dry ether. Now see what they have mentioned, the reaction is addition. और ये addition कहाँ पे होता है? Addition always takes place across multiple bond, that is either double or triple. जहाँ पे double bond होगा वहाँ पे addition होगा. Addition always takes place across multiple bond. तो यहाँ पे addition कहाँ होने वाला है? अक्रॉस सी डबल बॉन्ड, क्योंकि हम यहां यूज करने वाले अल्डेहाइड्स और कीटोन्स. वी आर गोइंग टू ऐड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू आइदर अल्डिहाइड और कीटोन. नाउ सी, कार्बन एटम ऑफ सी डबल बॉन्ड ग्रुप इज ऑलवेज पार्शली पॉजिटिव. अब ये पॉजिटिव क्यों होगा? क्योंकि उसे ऑक्सीजन अटैच है. ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो पार्शली नेगेटिव होगा और कार्बन रहेगा आपका पार्शली पॉजिटिव. ये बात तो हुई, लेकिन अब देखिए यहां पे आपका RMgX है. वी नो दैट मैग्नीशियम इज अ मेटल विच इज पार्शियली पॉजिटिव, तो आर के ऊपर चार्ज आएगा डेल्टा नेगेटिव. तो ये निगेटिवली चार्ज आपका जो अल्काइल ग्रुप है यहाँ पे, जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, नॉट कंप्लीट, नॉट यूनिट पॉजिटिव, इट इज पार्शियल नेगेटिव चार्ज. तो ये पार्शियली नेगेटिव आर ग्रुप कहाँ पे अटैक करेगा? कार्बन के ऊपर अटैक करेगा. और जो Mg पार्शियली पॉजिटिव है, इट विल गेट्स अटैच टू ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन को अटैच होगा. तो इसका मतलब है यहाँ पे ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, O को अटैच हुआ MgX और C को अटैच हुआ R ग्रुप. तो आपको ये एक अनस्टेबल एडक्ट मिलेगा जिसमें C डबल बॉन्ड का कन्वर्शन हुआ है COMgX और Cr में. तो देखिए ये इसे ये स्क्वायर ब्रैकेट डाला है, इसका मतलब है कि इट इज अनस्टेबल. जब भी केमिकल रिएक्शन में अनस्टेबल प्रोडक्ट बनता है बीच में, तो उसे हम स्क्वायर ब्रैकेट में डालते हैं. तो स्क्वायर ब्रैकेट इंडिकेट्स अनस्टेबिलिटी, अनस्टेबल प्रोडक्ट. अब यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है, यहाँ एडिशनली हम वाटर ऐड करेंगे या डाइल्यूट एसिड ऐड करेंगे, तो क्या होगा? इट विल ब्रेक बॉन्ड बिटवीन O एंड Mg. O को अटैच होगा H और Mg को अटैच होगा OH, एंड दैट्स वाई इस COMgX का कन्वर्शन होगा COH में, एंड Mg को एक एडिशनल OH अटैच होगा, तो MgXOH. इस तरह का एक आपको बाय प्रोडक्ट मिलेगा. सो हियर व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, आफ्टर एडिशन of Grignard's reagent to carbonyl compound, CO group is converted into CrOH. R तो वहाँ पे कहाँ से आया ये R? जो आपके Grignard reagent में, इट में भी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल. डबल बॉन्ड O का कन्वर्शन सिंगल बॉन्ड OH में होगा, तो आपके कार्बोनिल कंपाउंड का कन्वर्शन होगा प्राइमरी अल्कोहल में या सेकेंडरी अल्कोहल में. ये बात किससे ऊपर डिपेंड करेगी? आप किस तरह का अल्डिहाइड और कीटोन यूज करते हो, ये डिसाइड करेगा कि आपको प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है. प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा या सेकेंडरी. फॉर एग्जांपल सपोज यहाँ पे हमने एसीटोन लिया. इन केस ऑफ एसीटोन, CO ग्रुप इज लिंक टू 2 मिथाइल ग्रुप. सो इस दोनों साइड्स बता दो आपको कहाँ पे होंगे. लेट मी चूज अनदर कलर पॉइंटर के लिए, तो आपको ध्यान में आ जाएगा. तो देखिए यहाँ पे एक यहाँ पे होगा CH3 और दूसरा CH3 होगा यहाँ. तो फाइनल प्रोडक्ट में आपको यहाँ एक CH3 मिलेगा और यहाँ पे एक CH3 आएगा. CH3 CR
ओ एच ओ एच। तो देखिए कौन सा प्रोडक्ट मिला जब दोनों तरफ मिथाइल आता है, टर्शरी अल्कोहल मिला। समझ रहे आप? तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। और यहाँ पे हमने आर का वैल्यू सपोज सी एच थ्री लिया, तो फाइनली यू विल गेट अ टर्शरी अल्कोहल भी फॉर्म हो सकता है यदि आप यहाँ पे कीटोन कौन सा लेते हो, एसीटोन लेते हो, क्योंकि एसीटोन लोगे तो ये तीनों आर का वैल्यू सी एच थ्री आएगा। तो तीन सी एच थ्री ग्रुप्स कार्बन को अटैच है और उसको ओ एच अटैच है, तो इट इज़ अ टर्शरी अल्कोहल। यदि आप अल्डेहाइड लेते हो सी एच थ्री सी ओ एच, तो आपको कौन सा प्रोडक्ट मिल सकता है? देखिए यहाँ पे आर आएगा, यहाँ आर लेकिन एक जगह पे एच आएगा, तो सी एच ओ एच सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। यदि आप लेते हो फॉर्माल्डिहाइड, जिस फॉर्माल्डिहाइड में सीओ लिंक्ड होता है दोनों तरफ एच हाइड्रोजन आइटम को, तो आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप क्या करो, ये तीन रिएक्शन सॉल्व करने के रिएक्शन प्रयास करो। देखिए क्वेश्चन नोट डाउन कर लो आप। क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट इज द एक्शन ऑफ CH3MgCl on number 1 formaldehyde, number 2 acetaldehyde, and number 3 acetone. What is the action of CH3MgCl on number 1 formaldehyde, number 2 acetaldehyde, number 3 acetone? तो ये आप सॉल्व करने की कोशिश करो। सॉल्व करने के बाद आप समझ पाओगे कि जब आप डिफरेंट अल्डिहाइड्स यूज करते हो और उसकी ग्रिग्नाइट रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हो तो आपको डिफरेंट अल्कोहल्स मिलते हैं। आप कीटोन लेते हो तो आपको टर्शरी अल्कोहल ही मिलेगा। तो देखिए एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इस टॉपिक में से, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 100% क्वेश्चन आएगा। जो अभी मैंने दिया वो पूछ सकते हो क्वेश्चन 3 मार्क के लिए, या 1 मार्क के लिए भी पूछ सकते हो। व्हाट इज द एक्शन ऑफ CH3MgCl ऑन फॉर्माल्डिहाइड, व्हाट इज द एक्शन ऑफ C2H5MgBr ऑन एसीटोन। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी है, क्वेश्चन पेपर में वो केमिकल कंपाउंड्स के कॉमन नेम यूज कर सकते हैं या IUPAC नेम्स। तो हर एक टॉपिक में जो नेमिंग सिस्टम का पार्ट है वो आपको अच्छी तरह से क्या करना है, स्टडी करना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन पेपर 2, दैट इज इन केस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इज नोमेनक्लेचर। ज़्यादातर क्वेश्चंस में आपको केमिकल कंपाउंड्स के नेम दिए जाते हैं, स्ट्रक्चर्स नहीं दिए जाते। तो नेम देखकर आपको पहले स्ट्रक्चर ड्रा करना पड़ेगा सही, और उसके बाद उसका रिएक्शन सुटेबल रिएजेंट के साथ करना होगा। सो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। ओके, देखिए यहाँ पे उन्होंने एक प्रॉब्लम दिया है कि प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट्स फॉर द फॉलोइंग CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CHO। अब देखिए कौन सा कंपाउंड है ये, तो इसमें आखिर में हमें CHO दिख रहा है, तो ये अल्डिहाइड है। लेकिन इस अल्डिहाइड में डबल बॉन्ड भी दिख रहा है यहाँ पे, तो ये अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड है। तो ये आपका अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड है। देखिए इसका रिएक्शन उन्होंने पहले किया है H2 और Ni के साथ। वी नो दैट H2 and Ni इज अ रेड्यूसिंग एजेंट, और ये रेड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, डबल बॉन्ड का कन्वर्शन करता है सिंगल बॉन्ड में, ये पहला वाला, और CHO का कन्वर्शन करता है CH2OH में। तो जब भी आप इस तरह का कंपाउंड जो अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड है, इसकी रिएक्शन H2 और Ni के साथ करोगे तो डबल बॉन्ड रिड्यूस होगा सिंगल, और CHO रिड्यूस होगा CH2OH में। तो आपको ये पर्टिकुलर फर्स्ट प्रोडक्ट मिलेगा। देखिए इसमें डबल बॉन्ड रिटेन नहीं है, लेकिन जब आप LiAlH4 यूज करते हो तो इसकी विशेषता क्या है, यदि आपके अल्डिहाइड में डबल बॉन्ड होगा तो वो उसे रिड्यूस नहीं करता, वो सिर्फ रिड्यूस करेगा CHO को। CHO का कन्वर्शन CH2OH में हुआ, लेकिन डबल बॉन्ड अभी रिटेन है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, LiAlH4 it does not reduce isolated olefinic bond। ये आपका आइसोलेटेड डबल बॉन्ड यानी ओलेफेनिक बॉन्ड है, जो अभी देखिए इस प्रोडक्ट में रिटेन है। सिर्फ CHO का कन्वर्शन CH2OH में हुआ। तो ये क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आ सकता है, तो आपको ये याद रखना होगा। अब देखिए यहाँ एक और पॉइंट उन्होंने डिस्कस किया, उसे देखते हैं। इपॉक्साइड, एक वर्ड आया है यहाँ पे इपॉक्साइड। तो देखिए इपॉक्साइड्स आर साइक्लिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन। देखिए यहाँ पे एक दिखाया है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O,
तो देखिए यहाँ पे जब भी इस तरह का लिंकेज रहेगा तो इसे हम इपॉक्साइड बोलते हैं। और वेन एवर वी ट्रीट इट विद ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, अब देखिए क्या होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करने के बाद, ऑक्सीजन तो पार्शियली नेगेटिव ही रहेगा बिकॉज इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो कार्बन रहेगा पार्शियली पॉजिटिव। तो कार्बन पार्शियली पॉजिटिव होने के कारण आपका ये आर ग्रुप अटैच होगा कार्बन को, और ये आपका MgX अटैच होगा ऑक्सीजन को। तो देखिए ओ का ए बॉन्ड तो ब्रेक हो जाएगा फिर, तो आपको मिला RCH2 सिंगल बॉन्ड OMgX। इसे आप रेड्यूस हाइड्रोलाइज करते हो तो OMgX विल बी कन्वर्टेड इनटू OH, तो आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। तो टाइमिंग आप इतना ही याद रखो कि जब भी आप इपॉक्साइड का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करते हो तो आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलता है, क्योंकि आपके अल्कोहल में कौन सा ग्रुप डेवलप होगा, CH2OH। Let us move to the next point, that is physical properties। तो देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वही मैं डिस्कस करूंगा, आप अदर प्रॉपर्टीज रीड करने की कोशिश करो। दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, एक है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट और दूसरी सोलिबिलिटी। अब देखिए MP और BP ये दोनों इंपॉर्टेंट क्यों है इस पॉइंट यहाँ पे, दे हैव मेंशन दैट अल्कोहल्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स दैन अल्कीन्स। अब ऐसा क्यों है भाई, क्योंकि देखिए अल्कोहल में OH ग्रुप रहता है एंड वी नो दैट OH ग्रुप इज अ पोलर ग्रुप। देखिए यहाँ पे शो किया है, आपका जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है उसमें आपका ऑक्सीजन पार्शियली नेगेटिव है और आपका हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव, तो पोलैरिटीज क्रिएट हुई। तो आपके अल्कोहल में जो OH ग्रुप है इट इज पोलर, लेकिन अल्केन में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन रहते तो पोलैरिटी नहीं रहती। अब जब भी आपका कंपाउंड पोलर रहेगा तो क्या होता है, आपके उस पर्टिकुलर कंपाउंड के जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स रहेंगे, हर एक मॉलिक्यूल में OH के ऊपर पोलैरिटी होगी, तो एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन एटम क्या करेगा, दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा एंड देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल बॉन्डिंग बिटवीन ऑक्सीजन ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड हाइड्रोजन ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने शो किया है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये क्या चीज़ है भाई हाइड्रोजन बॉन्ड, इट इज द पार्शियल बॉन्डिंग बिटवीन ऑक्सीजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड हाइड्रोजन ऑफ द अदर। तो इस तरह का हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण आपके अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स दे एसोसिएट टुगेदर, वो एक दूसरे के बहुत क्लोज आते हैं। अब क्लोज आने के कारण क्या होगा, जब भी आप अल्कोहल को बॉईल करने की कोशिश करोगे तो बॉइलिंग के दरम्यान ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी ब्रेक होने पड़ेंगे, तो यू हैव टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा एनर्जी। तो आप एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करते हो, इसका मतलब अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो देखिए यदि एक क्वेश्चन आता है अल्कोहल्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स दैन अल्केन्स, एक्सप्लेन, तो पहली चीज़ आपको मेंशन करनी पड़ेगी, इन अल्कोहल्स देयर इज अ हाइड्रोक्सी ग्रुप विच इज पोलर, oxygen is partially negative and hydrogen is partially positive. Number 2, as alcohols contain polar OH group, its molecules get associated due to hydrogen bonding। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वर्ड आपके आंसर में आना चाहिए, और वो आप डायग्रामेटिकली भी शो कर सकते हो, जैसे यहाँ पे सोल्युबिलिटी में दिखाया है। सिर्फ यहाँ क्या चेंज करना पड़ेगा, ये एक R के जगह पे आपको H की जगह R लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से आपके मॉलिक्यूल्स एसोसिएट होंगे और एसोसिएशन होने के कारण आपको ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट में मेंशन करना पड़ेगा, इन केस ऑफ अल्केन्स देयर आर नो हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड दैट्स व्हाई अल्कोहल्स बॉयल एट हायर टेम्परेचर दैन अल्केन्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट उन्होंने डिस्कस किया है, सोल्युबिलिटी। Phenols and lower alcohols show appreciable solubility in water due to their ability to form intermolecular hydrogen bonding with water। तो देखिए जिस अल्कोहल और फिनॉल में लोअर अल्कोहल बोला है, लोअर अल्कोहल यानी जिनमें स्मॉलर अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट है, ऐसे अल्कोहल्स, तो वो वाटर में कुछ हद तक सोल्यूबल होते हैं क्योंकि दे आर एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर। यहाँ देखिए ये दिखा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर, फिनॉल भी फॉर्म करता है और वो लोअर अल्कोहल्स भी करते हैं।
तो लोअर अल्कोहल्स और आपके फिनॉल्स दे आर सोल्युबल इन वाटर बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखिए एक नया वर्ड आया यहाँ पे, इंटरमोलिकुलर, इंटर यानी बिटवीन। तो जब दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के दरम्यान हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा तो हम उससे बोलेंगे इंटरमोलिकुलर। ये दो अलग मॉलिक्यूल्स है ना, एक अल्कोहल का एक वाटर का है, या दोनों अल्कोहल के होंगे तो भी वो अलग अलग मॉलिक्यूल्स है दो। तो when there is a hydrogen bonding between two like molecules, between not like, they may be like or different, but between different molecules it is intermolecular। दो मॉलिक्यूल के दरम्यान हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हुआ। एक इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी रहता है विद इन सिंगल मॉलिक्यूल। आपके एक ही मॉलिक्यूल में यदि OH ग्रुप है तो वो उसी मॉलिक्यूल के किसी हाइड्रोजन के साथ यदि बॉन्डिंग फॉर्म करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो उसे हम इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। तो यहाँ फिनॉल्स और लो अल्कोहल्स क्या करते हैं, दे फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर एंड दैट्स व्हाई दे आर सोल्यूबल इन वाटर। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज केमिकल प्रॉपर्टीज। तो देखिए आपके अल्कोहल में, पहले अल्कोहल के डिस्कस करेंगे। अल्कोहल में आपका OH ग्रुप है, तो अल्कोहल वो रिएक्शंस दिखाएगा जिसमें OH ग्रुप पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में, और वो ऐसी भी रिएक्शंस दिखाएगा जहां पे सिर्फ OH का हाइड्रोजन एटम पार्टिसिपेट होगा। तो दो तरह की रिएक्शंस पॉसिबल है, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन O and H and reactions involving breaking of a bond between R and OH। ठीक है, तो पहले मैं ये रिएक्शन डिस्कस करूंगा, कौन सी, रिएक्शंस ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। तो देखिए पहले भी मैंने आपको बताया था कि जनरली हम क्या बोलते हैं कि अल्कोहल्स आर न्यूट्रल कंपाउंड्स एंड फिनॉल्स आर वीकली एसिडिक। तो इसके ऊपर वो क्वेश्चन हमें पूछ सकते हैं कि व्हाई फिनॉल्स आर वीकली एसिडिक। तो ये वीकली एसिडिक है क्योंकि फिनॉल में जो हाइड्रोजन एटम है वो आप इजीली क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो यूजिंग अ बेटर बेस। अल्कोहल का भी होगा, देखिए दोनों रिएक्शंस उन्होंने यहाँ पे रिवर्सिबल दिखाई है, ROH प्लस वाटर गिव्स RO माइनस प्लस H3O प्लस। सेम केस फिनॉल के साथ होगा, ये देखिए फिनॉल प्लस वाटर गिव्स इस बेंजीन रिंग को O माइनस अटैच और H3O प्लस है, तो ये फिनॉक्साइड आयनाइन बना। लेकिन दोनों रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, देखिए एक रिएक्शन आपको देखना है अल्कोहल का और एक फिनॉल का। यहाँ पे फिनॉल में आपका जो फिनॉक्साइड एनाइन मिलता है ये ज़्यादा स्टेबल है। फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन अल्कोक्साइड, ये RO माइनस यानी अल्कोक्साइड, दिस वन इज अल्कोक्साइड एंड दिस वन इज फिनॉक्साइड। अभी फिनॉक्साइड आयन क्यों ज़्यादा स्टेबल है, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। ये देखिए रेजोनेंस यहाँ पे दिखाया है, ये जो नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ ऑक्सीजन के ऊपर, इट पार्टिसिपेट्स इन द रेजोनेंस। आपको पता है बेंजीन रिंग में ट्रिपल ये जो तीन बॉन्ड्स है दे आर नॉट लोकलाइज्ड, दे आर डीलोकलाइज्ड। अब डीलोकलाइज होने के कारण क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट होगा यहाँ पे, तो दिस पर्टिकुलर कार्बन विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। टू नलीफाई दैट पॉजिटिव चार्ज दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट बिटवीन CN। तो देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड डेवलप हुआ, इन टर्न ये बॉन्ड इस बॉन्ड ने यहाँ से यहाँ जम गई, तो ये जो नेगेटिव चार्ज इनिशियली ऑक्सीजन के ऊपर था कार्बन के ऊपर आया, ये यहाँ से आगे शिफ्ट होगा तो डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे आएगा और पैरा पोजीशन पे जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। तो ये जो डीलोकलाइजेशन है इलेक्ट्रॉन्स का, वी कॉल इट रेजोनेंस। तो सिंगल वर्ड में आपको याद रखना है, फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। सच रेजोनेंस इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ अल्कोक्साइड्स। तो इस कारण से आपका फिनॉल वीकली एसिडिक है, क्योंकि जब भी फिनॉल H+ डोनेट करता है तो फिनॉक्साइड आयन बनेगा और वो स्टेबल है, तो स्टेबल होने के कारण वो इजीली क्या कर सकता है, अपना H+ दे सकता है। देखिए यहाँ पे कुछ चीजें मेंशन की है। फिनॉक्साइड आयन द कॉन्जुगेट बेस ऑफ फिनॉल इन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बाय डीलोकलाइजेशन of negative charge, therefore phenol ionizes in aqueous medium
to a moderate extent and there shows a weak acidic character. तो जब भी आप रिवाइज करोगे तो ये पार्ट आपको पढ़ना है. 1 मार्क के लिए पूछेंगे तो आप सिर्फ स्टेटमेंट दोगे, वर्ड में लिखना है. 2 मार्क के लिए पूछते सेम क्वेश्चन तो आपको ये रेजोनेटिंग फॉर्म्स भी ड्रॉ करने पड़ेंगे जो स्क्वायर बॉक्स में दिखाए हैं. क्वेश्चन क्या आएगा, फिनॉल्स आर वीकली एसिडिक, एक्सप्लेन. तो ये सब लिखना पड़ेगा. गॉट इट. तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आज हम रुकेंगे. अब अगले लेक्चर में क्या करूँगा मैं, आज जो एक 2-3 रिएक्शंस हमने देखी है उसकी कुछ एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करूँगा. तो आज तो ये सब थ्योरेटिकल पार्ट था, आप ये पढ़िए, आपके खुद के शॉर्ट नोट्स निकालिए. और पहले लेक्चर में मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई थी कि जो इस साल सिलेबस में से ओमिट कर दिए, तो आप वो मत पढ़ो. इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस विथ यू पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स विथ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट एंड रिडक्शन रिएक्शंस. अब देखिए, हर एक टॉपिक में उन्होंने इस तरह के कुछ प्रॉब्लम्स दिए, ये आप सॉल्व करने की कोशिश करो, उसके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए. तो आप वो पढ़ो, 1-2-3 बार आपको क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर लिखना है और फिर चेक करना है कि आंसर सही आया या नहीं आया. अब देखिए, अभी मैंने जो डिस्कस किया उसमें एक वर्ड आया था कॉन्जुगेट बेस. तो ये क्या चीज़ है भाई, कॉन्जुगेट बेस या कॉन्जुगेट एसिड? ये आपने कहाँ पे पढ़ा है? देखिए, जब आपने इक्विलिब्रिया टॉपिक पढ़ा था, केमिकल इक्विलिब्रियम या आयोनिक इक्विलिब्रिया, उसमें ये सब चीज़ आई थी. तो आपको ये रिवाइज करना पड़ेगा वहाँ से, ये क्या चीज़ रहता है कॉन्जुगेट बेस. क्योंकि यहाँ पे आपने लिखा कि फिनॉक्साइडाइन इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ फिनॉल, लेकिन क्यों बोलते हैं आप इससे, उसमें क्या डिफरेंस रहता है दोनों में, शायद किसी को याद आया होगा. तो अभी मैं नहीं बताने वाला, नेक्स्ट लेक्चर में याद आया तो डिस्कस करेंगे. तो ये सब चीज़ें आप पढ़ो. आज यहाँ पे रुकेंगे हम. ठीक है, थैंक यू.